Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 6 of political science. The name of the chapter is political parties. In yesterday's videos, I explained you that what is political party and what are the functions of political parties. Now, today's my topic is necessity. Under this topic, we have to be learned that why we need political parties, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें आवश्यकता क्यों है. और yesterday I told you that those are the functions of political parties. For all that purposes we need political parties. कि जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन्हीं पार्टीज़ के लिए, उन्हीं फंक्शंस के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता पड़ती है. सो लेट अस रीड अबाउट. आपके पास सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे ये, बट फिर भी वी हैव टू बी रीड दिस टॉपिक नाउ. This list of function in a sense answer the question asked above. We need political parties. और यहीं पर आंसर है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन. बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. पर फिर भी क्वेश्चन राइज होता है कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के राइज क्यों नहीं हो सकती. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policies. देखो, we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. कि अगर हमारे पास पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा. हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा. नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल. कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा लोगों से कि मैं ये कर दूंगा, मेरा ये मैनिफेस्टो है या ये एम है. ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है. देन about any major policy changes, the government may be formed but in until utility will remain ever uncertain. Election representative will be accountable to their constituency for what they do in the locality. जो इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो अपनी लोकेलिटी के लिए तो अकाउंटेबल हो सकते हैं, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री. कोई भी पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. ठीक है. कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होंगी नहीं होंगी तो क्या होगा कि कोई भी पॉलिटिकल चेंज नहीं आ पाएगा, कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जा सकेंगे. ठीक है. कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई ग्रुप नहीं रहेगा जो पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. ठीक है. उसके बाद we can also think about it by looking to one non-party based election. अगर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होंगे तो क्या होगा. The parties do not contact formally. It is generally noticed that the village gets split into more than one faction. एरिया विलेज पूरा स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल of its candidates. This is exactly what the party does, and thus in the reason we find political parties. और political parties क्या करती हैं, वो सबको इकट्ठा करती हैं, एक पैनल बनाती हैं और फिर काम करती हैं. So that for all these purposes we need political parties. तो कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए, कंट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए, कंट्री को सही ढंग से एक यूनाइट करने के लिए, ठीक है, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. इन सब कामों के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए. लेट अस रीड. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. As we have seen, large societies need representative democracy as societies become large and complex. They also needed some agencies to gather different views on various issues and know present these to the government.
वेरियस इश्यूज पर व्यूज़ आएंगे, और कोई भी नया प्रेजेंट नहीं आएगा गवर्नमेंट में, ठीक है. दे नीड some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed, ठीक है. they needed mechanism to support or restart the government make policies. तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रेम करेंगे और फिर दोबारा से वही काम करेंगे दैट द पार्टीज हैव डन. okay, so this shows that for all these purposes we need political parties. हमें इन सभी वर्क्स के लिए हमें political parties की आवश्यकता पड़ती है. okay, now come on the next topic. The next topic is how many political parties should we have. कितनी होनी चाहिए. What do you think? कितनी होनी चाहिए बच्चे. अगर मैं पार्टी सिस्टम की बात करूँ तो हमारे कंट्री में तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं. But what do you think? Either these much of parties we required or not? इतनी ही पार्टीज होनी चाहिए. चलिए इसको भी रीड करते हैं कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए एक कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशंस को बनाए रखने के लिए. ठीक है. How many parties should we have? In a democracy, any group of citizen is free to form a political party. डेमोक्रेसी में कोई भी ग्रुप है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है. In this formal sense, there are a large number of political parties in each country. और इसीलिए हर कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. More than 750 parties are registered with the Election Commission of India. But not all these parties are serious contenders in the election. देखिए 700 more than 750 parties रजिस्टर्ड है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास, बट ये सारी सीरियस नहीं होती हैं रिगार्डिंग इलेक्शन. यूजली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर हेयर. कुछ पार्टीज होती हैं जेट अफेक्टली इन द रेस टू विन द इलेक्शन, जो कि इलेक्शन जीतने के लिए काम करती हैं. दे वांट टू बी फॉर्म देयर गवर्नमेंट इनटू द कंट्री और इन एन एरिया and form the government. So the question then is how many measure of effective parties are good for the democracy. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितनी होनी चाहिए जो अच्छी हो डेमोक्रेसी के लिए. तो इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी. अब देखो पार्टीज कैसी हैं. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, लाइक चाइना. ओनली वन पार्टी इज़ देयर और वो वन पार्टी सिस्टम ही अपने एरिया के लोगों को चूज़ करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है. ठीक है. चाइना में हमने पढ़ा था कम्युनिस्ट पार्टी है जो सभी को चूज़ करती है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है. पर यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रहती है क्योंकि पीपल डोंट हैव एनी चॉइस. कोई भी पर्सन आएगा वो उन्हीं के अंडर काम करेगा. ठीक है. तो पॉलिसीज चेंज नहीं होती हैं. पार्टीज अलाउड टू रूल ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. इट डजंट हैपन बिकॉज द इलेक्ट्रल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर. ठीक है. तो लीगली तो वो कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, बट इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को खड़ा नहीं हो सकता जो कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा परमिट ना किया गया हो. परमिशन नहीं है उनको कंपटीशन में लड़ने की. तो यहाँ से ये होता है कंसीडर कि वो एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन को ख़त्म कर देता है. तो वन पार्टी सिस्टम इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन. तो ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको एक गुड ऑप्शन कंसीडर नहीं करते. ठीक है. एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट लीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इन इलेक्शन. डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए. बट यहाँ पर भी एक फेयर चांस नहीं मिलता लोगों के पास कि 2 पार्टीज नहीं हैं. अगर वो दोनों ही काम करना बंद कर दें तो क्या होगा. दोनों में भी एक पार्टी को पता है कि अगर इस बार हम इलेक्शन हार गए तो मे बी नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे. दूसरी को पता है कि इस बार हार गए तो दूसरी बार आ जाएगी. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं रहती और ऑप्शंस ना रहने की वजह से वो फुल डेमोक्रेसी को नहीं लेते.
In some countries powers usually changes between two main parties. पावर्स जो है दो मेन पार्टीज के बीच में चेंज होती हैं. Several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national legislature. पावर्स चेंज हो रही है टू मेन पार्टीज के बीच में. बहुत सारी अदर पार्टीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, कंटेस्ट इलेक्शन करती हैं, विन फ्यू सीट्स, कुछ सीट्स को जीतती भी हैं, बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस टू विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम. ये टू पार्टी सिस्टम की बात कर रहा है. एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम. अमेरिका और यूके, ये दो हमारे पास टू पार्टी सिस्टम के ही एग्जाम्पल है, जहाँ पर मेजर दो ही पार्टीज़ हैं. दूसरी पार्टीज़ भी हैं, वो इलेक्शन भी लड़ती हैं, बट वो ज़्यादा वोट नहीं लेती हैं और इसलिए वहाँ पर वो इलेक्शन गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती हैं. ठीक है, चलिए. बट बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर मोर देन टू पार्टी सिस्टम है, एंड वी कैन से दैट देयर इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, वेयर मैनी पार्टीज आर हेयर, मैनी अलायंसेज आर हेयर, और वो रीजनेबल चांसेस पर खड़ी भी होती हैं, इलेक्शन भी लड़ती हैं. तो दैट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन. अब यहाँ पर क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में कई बार जब एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो बहुत सारी पार्टीज, मोर देन टू पार्टीज कम टुगेदर, वो इकट्ठी होती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं. दैट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर. जब पार्टीज कोलिशन हो जाती हैं, देखो अब इसमें दो चीज़ें हैं, अलायंस और फ्रंट, दो चीज़ें होती हैं. फ्रंट जब वो इलेक्शन से पहले मिलती हैं तो फ्रंट और अलायंस और फ्रंट बनाती हैं, और जब वो बाद में मिलती हैं तो हम उनको कोलिशन गवर्नमेंट में चेंज कर देते हैं. ठीक है, अलायंस कब बना रही हैं, जब वो इलेक्शन से पहले ही इकट्ठी हो गई, जैसे एनडीए, यूपीए, कोलिशन ही हैं ये. कंटेस्ट इलेक्शन को लड़ने के लिए वो यही कहती हैं कि अगर हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे एक एजेंडा के साथ, तो वो अपना एक अलायंस बनाती हैं और फ्रंट बनाती हैं. ठीक है, और अगर वो जीत जाती है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है. ठीक है, क्योंकि वो आपस में कोलिशन से बनी है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 such major alliances in 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन. 3 इलेक्शंस अलायंसेस थे. NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, जिसमें जो मेजर पार्टी थी वो थी बीजेपी. एंड UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस, इसमें जो मेजर पार्टी थी वो कांग्रेस थी. ठीक है, तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी कोलिशन गवर्नमेंट की भी होती है और सिंगल गवर्नमेंट की भी होती है. अगर मल्टी पार्टी सिस्टम में मैक्सिमम वैसे ये हो जाता है कि सिंगल पार्टी नहीं आ पाती है मेजॉरिटी में. अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 बार सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में है, अदरवाइज पहले नहीं आ पा रहे थे. तो उन्होंने NDA और UPA, 2 गवर्नमेंट, 2 कोलिशन, 2 फ्रंट्स, 2 अलायंसेस बना लिए थे. ठीक है, the multi-party system often appears very massive and leads to political instability. अब मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है. एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू इंजॉय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. और इसके साथ साथ ये हमें बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे पावर्स, बहुत सारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंजॉय करने का भी मौका देता है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है, अपना क्राइटेरिया होता है वर्किंग का. तो लोगों के पास ऑप्शन आ जाती है दैट विच पार्टीज वर्किंग ओपिनियंस दे लाइक एंड दे वांट टू गिव द चांस टू मेक द गवर्नमेंट. सो दिस इज
the multi-party system. So according to you, which is better? The best answer of this very common question is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions. तो वो ये कह रहा है कि कौन सा बेस्ट है, ये हम नॉर्मल नहीं कह सकते. नॉर्मली ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कंट्री की सिचुएशंस के ऊपर, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसका रीजनल डिवीज़न कैसा है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन सिस्टम पर भी डिपेंड करता है. तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इन आवर कंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट. वो कह ही रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व ए मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री. ठीक है, हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. इट इज़ नॉट ईजी टू ऑब्जर्व बाय 2 और इवन 3 पार्टीज़. ठीक है, 2 या 3 पार्टीज इस डाइवर्सिटी को नहीं संभाल सकती. सो दैट इन अकॉर्डिंग टू आर सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो फॉर आर कंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ बेस्ट. नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन. और वो ये भी कह रहा है कि कोई भी सिस्टम आइडल नहीं है एक सभी कंट्रीज़ के लिए और सभी सिचुएशंस के लिए. डिपेंड कर रहा है, कहीं 1 पार्टी सिस्टम ही आइडल है, कहीं 2 पार्टी सिस्टम आइडल है और कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम आइडल है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस. ओके, सो दिस इज़ योर दैट हाउ मच पार्टीज शुड वी हैव का आंसर आ गया कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. वो सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी पार्टीज़ हमारे पास होनी चाहिए. ठीक है, सो दैट्स इट दैट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल पार्टीज़. बच्चे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे स्टेट पार्टीज़ कौन सी होती हैं और नेशनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं, या वी कैन से रीजनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं और नेशनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं. बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस टॉपिक. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन. ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू.